ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বৈপ্লবিক অগ্রগতি প্রবর্তন হল এমআর লিনিয়া। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি আমাদের নতুন সংযোজন। ক্যান্সার চিকিৎসায় অগ্রগামী এবং পথপ্রদর্শক হওয়ার কারণে যশোদা হসপিটালস এখন আপনার জন্য নিয়ে এসেছে বিশ্বের সেরা এবং ভারতের প্রথম এমআর লিনিয়ার টেকনোলজি। এআই প্রযুক্তির ব্যবহার আরও নির্ভুলতা এবং কার্যকারিতা বাড়ায়, ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমে যায় এবং রোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এই যুগান্তকারী প্রযুক্তি এখন যশোদা হসপিটালস হাইটেক সিটিতে উপলব্ধ। স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যৎ আজই অনুভব করুন। যশোদা হসপিটালসে আমাদের অত্যন্ত দক্ষ ডাক্তার, নার্স এবং সহায়তা কর্মীরা বিশেষ যত্ন প্রদান করেন। আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের বিশ্বাস করুন, কারণ যশোদা হসপিটালসে আপনার সুস্থতা আমাদের অগ্রাধিকার। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই অনুষ্ঠানে। দেখুন, আমার প্রচুর প্রিয় মানুষ রয়েছেন, ফ্রেন্ডস রয়েছেন, ফ্যামিলি মেম্বার্স রয়েছেন, নেইবার্স রয়েছেন। রিলেশনটা বহু মানুষের সঙ্গে ডিরেক্টলি এবং ইনডিরেক্টলি গত 15 বছর ধরে রয়েছে। কাজেই আমি এর আগে যখন এই হসপিটালের আরেকটি প্রোগ্রাম করেছিলাম, বহু মানুষ আমায় ফোন করে বলেছিলেন যে দেবাশিস, আরেকবার যদি সম্ভব হয় তো হায়দ্রাবাদের যশোদা গ্রুপ অফ হসপিটালস নিয়ে প্রোগ্রাম করতে। আই রেসপেক্ট ইউ অল, আই লাভ ইউ অল। এই কারণের জন্য আজ আবার আরেকটা স্পেশাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। এক্স্যাক্টলি আপনি যা ভাবছেন এক্স্যাক্ট তাই। আজও হসপিটালের নাম হচ্ছে যশোদা গ্রুপ অফ হসপিটাল হায়দ্রাবাদ। আপনারা অনেকে হায়দ্রাবাদে গেছিলেন, তারা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছেন যে 4000 বেড বিশিষ্ট এই হসপিটালে যে ধরনের মডার্ন অ্যামিউনিটিস রয়েছে, যে ধরনের স্পেশাল কর্ডিয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স আপনারা পেয়েছেন, যে ধরনের ডাক্তারবাবুরা আপনাদেরকে দেখেছেন, যে ধরনের ব্যবহার তাদের থেকে পেয়েছেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ব্যবহার তাদের সঙ্গে পেয়েছেন, তাদের থেকে পেয়েছেন, যেরকম বিহেভিয়ার পেয়েছেন, এটা এক কথায় অসাধারণ। আমিও তাই মনে করি। আমিও হায়দ্রাবাদ আগামী মাসেই যাব। সেই সময় আমার একবার ভিজিট করার ইচ্ছে থাকলো, কারণ যেহেতু এত মানুষ বলেছেন। আজ সমস্যাটা এমন একটা সমস্যা যেটা বহু মানুষের সমস্যা। কি সেটা? ক্যান্সার। ক্যান্সার নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু ক্যান্সার তো প্রচুর এপিসোড হয়, প্রচুর প্রোগ্রাম হয়। আজ তাহলে নতুন কি বলবো? হোয়াট ইজ দ্য নিউ ইন দিস প্রোগ্রাম? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য বিফোর অল দ্য প্রোগ্রাম হুইচ উই হ্যাভ ডিসকাসড? তার থেকে কি আলাদা রয়েছে? আজকে আমরা মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে কথা বলবো, এমআর লিন্যাক নিয়ে কথা বলবো। আপনি ভাবতে পারেন যে এমআর লিন্যাক কি? এমন একটা পদ্ধতি যাতে 8 থেকে 80 বছরের মানুষের ক্যান্সারের চিকিৎসা হতে পারে। হতে পারে যে আপনি কেমোথেরাপি নিতে, রেডিয়েশন নিতে এবং অপারেশন করানোর মতো অবস্থায় নেই, তাহলে এমআর লিন্যাক ট্রিটমেন্ট করতে পারে। কি এমন এই মডার্ন আল্ট্রা ইম্প্রোভাইজেশন, সেটাই আজকে কথা বলবো। আজকে আমরা খুব প্লেসড, আমাদের এটা একটা খুব বড় প্রাপ্তি যে আমাদের সঙ্গে আজকে দীর্ঘ 15 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিনিয়র কনসালটেন্ট রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট ডাক্তার প্রদীপ কুমার কারুমাঞ্চি রয়েছেন। আমি স্বাগত জানাই আজকে আপনাকে এই অনুষ্ঠানে। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইউ ইন কলকাতা, इन आवर स्टूडियो। नमस्ते सर, फर्स्ट मुझे ये जानना है कि हमारा जो कैंसर है, इसमें ऐसा कुछ पेशेंट होते हैं, those who are unable to do the operation, take the chemotherapy and the radiation. Is it possible now in the modern technologies and techniques they are coming into the treatment? आप जो बोले हैं वो सही है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो हैं अभी ज़्यादा उम्र होने के बाद अभी बहुत ज़्यादा हमको डायग्नोस हो रहे हैं। तो इन लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि जो एज के वजह से वो लोग कई सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, कई कीमो के लिए फिट नहीं होता है। ऐसे लोगों में आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कम होता जाता है। लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि रेडिएशन में भी इतना एडवांसमेंट आया कि वैसे लोगों में भी एक टेलर मेड मेडिसिन रेडिएशन की थेरेपी से कई तरह के कैंसर्स में ट्रीटमेंट करके क्योर भी कर सकते हैं अभी। सर, ये जो एक एग्जाम्पल है, আপনারা কি চান যে এক্সাম্পল দেখতে? দেয়ার আর লটস অফ এক্সাম্পল।
ইসোফেজিয়াল ক্যান্সারে ভুগছিলেন 86 ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্ট, তিনি একই সঙ্গে হার্ট পেশেন্ট ছিলেন। দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল ইজ দেয়ার ইজ অ্যানাদার উমেন এজড 80 and she had laryngeal cancer. She had severe breathing problem. A trainer, gym trainer, I think that you know the article in the Bengali, gym trainer suffering by cancer, and another patient who had the kidney problem very in young age. These are all the patient, these are all the example, and you did जो ट्रीटमेंट है आपने 15 ईयर्स से किए हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है इसमें बेनिफिट क्या है, पेशेंट के क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं? ठीक है, जैसे ऑन्कोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जब से ट्रीटमेंट चालू हुआ है, आई थिंक मे बी डिकेड्स अगो, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले सर्जरीज करने के वजह से और कुछ तरीका नहीं था, सो सर्जरी करके निकाल देना, फिर आया तो फिर कट करना, ऐसे होता था। बार बार करना पड़ता था, तो समझ में नहीं कि क्या करना। उसके बाद क्या हो गया, रेडिएशन आ गया। रेडिएशन की वजह से जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स है उसको किल करके और कंट्रोल करने शुरू कर दिया। एंड रेडिएशन वो टाइप इतना क्रूड था, खाली रेडियम के वजह से डायरेक्ट रेडिएशन देना पड़ता था, नहीं तो कोबाल्ट मशीन्स आते थे। सो उसके वजह से क्या है ना, वो रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते थे पेशेंट के ऊपर। वो साइड इफेक्ट ट्यूमर को जो कैसे भी हम कंट्रोल कर रहे हैं वैसे ही उसका साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो रहे, तो इसलिए उस टाइम पे रेडिएशन का लिमिटेड रोल रहता था। देन कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी हर एक सालों में तो नया नया ड्रग्स निकलने शुरू कर दिया। सो ये भी अपना सपोर्टिव सिस्टम में आ गया है, जो बॉडी में स्प्रेड करने से वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है एक कैंसर ट्रीटमेंट में। और ऐसे सालों में ट्रीटमेंट करते करते इतना अच्छा प्रोटोकॉल्स बन गया कि अभी इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बन गया कि कौन सा साइड पे, कौन सा स्टेज पे कैसे ट्रीटमेंट करना है। जैसे सर्जरी करना है, सर्जरी के साथ रेडिएशन करना है, ये सब अभी सेट है। लेकिन इसमें क्या अभी नया है, सर्जरी करने का तरीका चेंज हो गया है और रेडिएशन देने का मशीन्स चेंज होते रहते हैं। कीमोथेरेपी में भी नया नया ड्रग्स आ रहे हैं। सो अभी रेडिएशन देख लीजिए, पहले जो बोलते हैं 2D टेक्निक्स, 3D टेक्निक्स बोलते हैं, जो रेडिएशन के लिए एक मशीन ओपन करना है, जैसे जहां ट्रीटमेंट मान लो कि इधर देना है, वो पूरा एरिया को कंप्लीट रेडिएशन जाता है। अच्छा। इसके वजह से उसके पीछे जो भी ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, सबको रेडिएशन ऐसे चले जाते हैं। हम प्रिसाइजली इफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके वजह से क्या है, वो ट्यूमर का क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होना शुरू करता है। साइड वाला जो हिस्सा है वो भी इफेक्टेड होता है। साइड इफेक्ट शुरू करते हैं, बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और फ्यूचर में जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद अभी IMRT बोल के आ गया है और IGRT, इसमें क्या करना शुरू कर दिया, रेडिएशन को ट्यूमर के शेप में बीम्स को शेप करके भेजना शुरू कर दिया है। अच्छा। और जो रेडिएशन को अंदर भेजने का तरीका बहुत सारे चेंजेस आ गया है। अच्छा। उसमें इमेज गाइडेंस भी ऐड कर दिया, मतलब एक जो डेली ट्रीटमेंट करना पड़ते हैं रेडिएशन के लिए, 1 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी ट्रीटमेंट करना पड़ते हैं। सो डेली एक ही पोजीशन में पेशेंट बैठना भी मुश्किल है, तो प्रिसाइजली उसको देना एक बहुत चैलेंजिंग आता है। लेकिन सर अब जो ये MR लिनैक की बात हम कर रहे हैं, इसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है, और जो कन्वेंशनल रेडिएशनल जो प्रोसेस और थेरेपीज की बात आप कर रहे थे, उसमें क्या चेंजेस है? जब प्रिसिशन की जो बात आती है तभी कितना प्रिसाइज है, कितनी मॉडर्न है? ओके, सो अभी तक जो रेगुलर रेडिएशन मशीन्स है, वो कन्वेंशनल रेडिएशन मशीन्स बोलते हैं, लिनैक्स, वो सब पूरा CT गाइडेड, मतलब CT स्कैन के आधार के ऊपर हम प्लान करते हैं रेडिएशन करने के लिए। तो अभी MRI और CT का बहुत अंतर रहता है। आप कभी देखा होगा CT स्कैन में कैसा दिखता है इमेज, और MRI में कितना और क्रिस्प एंड क्लियर दिखता है। छोटे छोटे नसों और सॉफ्ट टिश्यूज, एवरीथिंग बहुत क्लियर दिखता है। अच्छा। तो इतना क्लियर एंड क्रिस्प आपको दिख रहा है तो आपका प्लानिंग भी बहुत डिफरेंस हो जाएगा। सो जैसे अभी क्या है, एक MR लिनक जो है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये MRI को इंटीग्रेट कर दिया रेगुलर रेडिएशन मशीन के अंदर। अच्छा। तो अभी CT को हटा के वो MRI यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब रियल टाइम में जो एग्जैक्टली जो दिखना है वो डायरेक्टली दिख रहा है, और प्रिसिशन से वो चेंजेस जो होता है CT से फिर रेडिएशन क्या है वो सब हटा के डायरेक्ट प्रिसिशन से प्लान करना पड़ रहा है।
और इसके अलावा इसका एडवांटेज ऐसा है कि वो जो ट्रीटमेंट डेली पेशेंट आने के बाद एवरीडे एक एमआरआई निकालते हैं ऑन बोर्ड, जो पता चलता है कितना चेंजेस आया, डेवलपमेंट कितना हुआ और कितना या ट्रीटमेंट कितना हो रहे हैं, उसमें चेंजेस कुछ आ रहे हैं क्या, वो चेंजेस के हिसाब से हम प्लान भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपको दिख रहा है वो टाइम पे, वही टाइम पे जो दिख रहा है उसको प्लान करके डिलीवर कर रहे हैं। इट्स एक रियल टाइम वर्चुअल सर्जरी जैसा हो जाएगा। अच्छा, सो इसके हिसाब से एडवांटेज ऐसा है कि यू आर अवॉइडिंग सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। सर अभी एक बात पूछना है कि हमारा जो दर्शक आप देख रहे हैं उसको ये पूछना है कि व्हाट टाइप ऑफ कैंसर डज ये जो एमआर लिनक है वो काम करते हैं, किस किस जगह में होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं इसके ऊपर? ओके, एमआर लिनक का एडवांटेज ये है कि हम हर एक तरफ के कैंसर में इसको यूज कर सकते हैं। इसका इतना फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज कहाँ मिलता है कि जो मूविंग ट्यूमर्स जहाँ रहते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो अपना रेस्पिरेशन के हिसाब से मूवमेंट रहता है, लंग कैंसर है वो डायरेक्ट लंग के अंदर रहते हैं, हमेशा मूवमेंट रहता है उसका, और ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो जो क्रिटिकल एरियाज में रहता है उसको एग्जैक्ट प्रिसाइज से नहीं देने से नॉर्मल ब्रेन टिश्यू इफेक्ट होने का चांसेस होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट भी हमेशा अपना ब्लैडर और रेक्टम के हिसाब से वो भी पोजिशनल चेंजेस आते रहते हैं। लिवर कैंसर, पैंक्रियास, जहां जहां मूवमेंट है, जहां जहां प्रेसिशन चाहिए वहां इसका एडवांटेज बहुत होता है। सर अब जो बात है कि जो एल्डरली पेशेंट है और जो यंगर है, उम्र से छोटा है, ये दोनों की बात हम कर रहे थे। जो छोटा है उसके ऊपर एमआर लिनक का इफेक्ट क्या है, कितना प्रिसाइजली ये ट्रीटमेंट करेगा, और जो एल्डर पेशेंट है मोस्ट प्रोबेबली आप 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड, उस पर जो बहुत सारा दिक्कत होते हैं, कोमॉर्बिडिटीज बहुत सारा होते हैं, ये शुगर है, डायबिटीज है और इतना सारा रोग है, तो उसके ऊपर इसका इफेक्शन कैसे आते हैं, जो इफेक्ट करते हैं ये कितना प्रिसाइजली करते हैं? सो अभी देखे तो पहले बच्चों की बात करेंगे। तो जब छोटे बच्चे रहते हैं उनका ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको। जैसे छोटे बच्चों में कोई कैंसर आया है, उसको ट्रीटमेंट हम खाली ट्रीटमेंट करने से जस्ट कैंसर को किल करने के लिए सोचते नहीं। कैंसर का किल करने के बाद उसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, क्योंकि इसका उम्र बहुत लंबा होता है और इतना 20-30 साल बढ़ाने के बाद, इतना ग्रो होने के बाद इसको क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है हमारे ट्रीटमेंट से, ये भी हम सोच के करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अभी ब्रेन में कुछ ट्यूमर आया है, वो अभी उसको डायरेक्ट रेडिएशन दे दिया, उसके हिसाब से सराउंडिंग में जो ब्रेन टिश्यू है उसमें भी रेडिएशन गया तो स्लोली वो भी उसका फंक्शनिंग कम होता जाएगा। जैसे वो अपना एज बढ़ता जाएगा उसका फंक्शंस कम होता जाएगा। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको प्रिसाइजली देना पड़ता है जो ट्यूमर के अलावा बाकी टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यूज को इफेक्ट ना होना। इसके लिए एमआर लिनक कितना अच्छा यूज होता है कि प्रिसाइजली 0 मार्जिन से उसको टारगेट करके बाकी सब नॉर्मल ब्रेन टिश्यूज हो और कहीं एरिया में हो, उसको पूरा अपने टॉलरेंस लेवल से बहुत कम करके और लॉन्ग टर्म इफेक्ट से पूरा उसको बचा सकते हैं। ये बच्चों का है। अच्छा, सेकेंड थिंग, अभी एल्डरली एज वालों को देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत वीक रहते हैं और अब ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स हो, नहीं तो सीओपीडी लंग का पेशेंट्स हो, कोई पैरालिसिस पेशेंट्स हो। इन लोगों में भी अगर कैंसर आया तो ट्रीटमेंट करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि कई लोगों को सर्जिकल फिटनेस नहीं रहता, कई लोगों को कीमो देने से भी उसका बहुत टॉक्सिसिटी रहता है वो एज पे, इसलिए वो भी लिमिटेशन हो जाएगा। तो इन लोगों में भी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड रेडिएशन जब भी पहले जमाने में प्लान करते हैं कि पैलिएटिव डोज देंगे, ठीक है इसको सर्जरी नहीं करेंगे, कीमो नहीं, खाली एक रिलीफ करने के लिए रेडिएशन देना पड़ेगा। बट अभी कैसे सोचते हैं कि रेडिएशन की एडवांसमेंट है, टॉक्सिसिटी कम है, तो क्यों ना उसको क्यूर करने के लिए ट्राई करें। तो ये अभी हम चैलेंजिंग रोल से ले रहे हैं। एग्जाम्पल अभी आपको बोल दिया कि एक 80+ ईयर्स एक बड़ा यूसोफेजल कैंसर आया था। सो उसमें क्या है, वो पानी भी नहीं पी पा रहे। अच्छा। और स्ट्रोक पेशेंट नहीं, हार्ट पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस है। तो उन पेशेंट का फैमिली का इतना ही इंटरेस्ट है कि खाली एटलीस्ट रिलीफ आ जाए तो थोड़ा खा लेगा जब तक जिंदा है। तो हम ये चैलेंजिंग लिया है उसको, नया टेक्निक हाइपोफ्रैक्शनेशन से, क्योंकि वो कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते उनमें से, तो हाइपोफ्रैक्शन टेक्निक करके एमआर लिनक के ऊपर इतना क्रिस्प एंड क्लियर, वो क्योंकि उसके पीछे ही अपना हार्ट है और लंग्स है, उसको पूरा अवॉइड करके एग्जैक्टली ट्यूमर को प्रिसाइजली टारगेट किया है और इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आया कि 3 महीने वो कंप्लीट गायब हो गया है। एंड पेशेंट इतना खुश है, अपना खाना खा पा रहे, पी रहे, और अभी भी फॉलो अप में है, अभी तक वो पीछे नहीं आया था।
एंड इसके वजह से ऑलमोस्ट क्यूर समझ सकते हैं उसको। समझे आप ये ऐसे इस तरह का काम करते तो इतना पहले जो कॉम्प्लिकेशन था वो अब थोड़ा सा हट गया है, इतना चैलेंज जब ले रहे हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर काम करने से चैलेंजिंग एटीट्यूड होता है, ये चैलेंज लेने से आपको कैसा लगता है और फीलिंग क्या होता है सक्सेस पाने की बात? डेफिनेटली सो चैलेंजिंग बेसिकली हमारे जो इंटरेस्ट रहता है पेशेंट को सेफ रहना है, फिर अगर कुछ भी चांस हो उसको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये हमारा माइंडसेट रहता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है कोई भी अपना सेफ सेट रहेंगे, जो भी सेफ है वो दे देंगे, बट अभी एक भी चांस है उसको क्योर करने का, क्यों ना उसको यूज करे। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो भी पॉसिबिलिटी है, जो टाइलर मेड मेडिसिन कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स भी यूज करके चेंजेस करके उसको अगर क्यूर कर पाए तो उससे अच्छा हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा? और कुछ नहीं तो होता ये है। थोड़ा मैं एग्रेसिवली चैलेंजिंग लेता हूँ, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है, तो बहुत खुश है। सर आप प्रिसाइज ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लेने से वो प्रॉब्लम रहे थे उस पर ट्रीटमेंट की बात अब किया है, तो अब हम बोलेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका रोल क्या है एमआर लिनैक में, ये कैसे काम करता है? सो एमआर लिनैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंटीग्रेटेड है। तो इसमें क्या काम है कि जैसे ही हम ट्यूमर को देखते हैं मशीन के ऊपर, उसको प्रिसाइजली वो मैपिंग करके रखता है, एंड उसके अंदर जो भी ट्यूमर सेल्स होता है वो डिफरेंट सीरीज ऑफ एमआरआई से हमको पता चल सकता है कि कौन सा एरिया रेसिस्टेंट है, कौन सा एरिया सेंसिटिव है। तो इन सबको अपना मैपिंग करने में बहुत हेल्प करता है। एंड जैसे सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग में है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनको पहले बहुत मैन्युअली करना पड़ता है कि हर एक को अपना अपना अलग अलग तरीका में से उसको मार्क करना है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फास्ट है कि वो अपने के लिए आराम से ऑटोमेटिकली करके दे देते हैं। सो हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे और एक और भी चीज है कि जो प्लानिंग के टाइम पे जो एरर्स आ रहे हैं, नो कोई मैच नहीं हो रहा, वो पहले एक सिमुलेशन करके हमको बता देगा कि ये प्लेसेस में चैलेंजिंग है, इसको एडजस्ट करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। सो हर एक छोटा छोटा चीज में वो फाइन ट्यून करने में बहुत यूज करते हैं। एट द सेम टाइम जो ट्रीटमेंट बीम्स चल रहे हैं, जो रेडिएशन देने के टाइम पे भी एग्जैक्ट चेक करते हैं कि वो ट्यूमर को जा रहा है कि नहीं। अगर कुछ मिस हो रहा है तो हमको इमीडिएट इंटीमेशन देगी, तो अगर चाहिए तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करके फिर मैनेज कर सकते हैं। सो हर एक स्टेप में इट हेल्प्स इन गिविंग द फाइनल रिजल्ट प्रॉपरली। আপনারা শুনছেন এই যে ট্রিটমেন্টের কথা, এমআর লিন্যাকের কথা, যেটা যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি, এই মুহূর্তে যারা বাংলার যারা দর্শক রয়েছেন, যারা এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান দেখছেন, তারা এই পুরো ইন্টিগ্রেটেড মডার্ন টেকনিক্স অ্যান্ড টেকনোলজিস বেসড যে ট্রিটমেন্ট, এটা আপনারা হায়দ্রাবাদে পাবেন, যশোদা গ্রুপ অফ হসপিটালস আপনারা পাবেন। হয়তো মনে হতে পারে এই সময় আপনাদের যে আমরা একবার অবশ্যই ট্রিটমেন্টের জন্য যেতে চাই, তো ডেফিনেটলি যেতে পারেন আপনারা। বিস্তারিত আপনারা টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারে ফোন করতে পারেন, কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং ট্রিটমেন্টের জন্য আপনারা মুভ করতে পারেন। সব যারা আগে গিয়েছিলেন, আগের যে এপিসোড আমি করেছিলাম, তারা বলেছেন সবসময় এখানে একটা মানুষের ভীষণ প্রবলেম আছে এই বাংলার, যে বিহেভিয়ার, তারা যখন মেডিকেল বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে যাচ্ছেন তাদেরকে প্রপারলি বোঝানো হচ্ছে না, তারা নিজেরা বুঝতে পারছেন না যে তাদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়। সেই জায়গাটা খুব পরিষ্কারভাবে কিন্তু বলে দেওয়া হয়। আপনার সঙ্গে যে কনসালটেশন হবে সেই কনসালটেশনটা এমনভাবে হবে যাতে আপনি নিজের সমস্যা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন এবং নিজের কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেটাও আপনি জানতে পারবেন। এটা আমার কথা নয়, এটা এর আগে যারা গেছেন যশোদাতে তারা এসে আমাকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে, যারা আমার চেনাশোনার মধ্যে কয়েকজনকে আমি বলেছিলাম, তারা এসে বলছেন। তো কাজেই সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে বিহেভিয়ারিয়াল যে ইস্যু সেটা এক, দ্বিতীয়ত হলো হচ্ছে যে মডার্ন টেকনিক্স এবং টেকনোলজিস, ইম্প্রোভাইজড মেশিনস, সেগুলোকে ব্যবহার করা এবং তার যে ট্রিটমেন্ট মানুষের মধ্যে পৌঁছানো, এটা একটা বড় বিষয়। অর্থাৎ সেই স্ট্রেচারাল দিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্যই যশোদা গ্রুপ অফ হসপিটালস আপনাদের সামনে একটা ল্যান্ডমার্ক তৈরি করতে পারে। আমি এই জায়গা বলে আবারও এই আলোচনায় আসব। আমি डॉक्टर प्रदीप कुमार करुमंची है हमारे साथ, और जो पेशेंट की तरफ से जो एक्सपीरियंस होता है आफ्टर ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट ओनली पेशेंट, ऑल्सो द मेंबर, हिज द फैमिली मेंबर्स, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो जितना सारा वो एक्सपेक्ट करके जाते हैं, उसके बाद उसका फुलफिलमेंट ये कैसे होता है और वो
क्या क्या बात आपको बोलते हैं, और जो डेवलपमेंट है आफ्टर ट्रीटमेंट, पेशेंट का जो डेवलपमेंट है, इसका ग्राफ कैसा है? सो जब भी कैंसर डायग्नोस होने से पहले पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल्स थोड़ा अलग रहता है और वो सोचता है कि कैंसर ना हो, एंड हम भी वैसे सोचते हैं कि पूरा एवेल्युएट करें ताकि कैंसर ना मिस करे, नहीं तो कैंसर नहीं होता और भी खुश हैं। लेकिन जब भी एक डायग्नोसिस है, वो उसको कुछ मिला है स्कैनिंग में या बायोप्सी में, और उसको पेशेंट को ब्रेक करना एक बहुत चैलेंजिंग थिंग है, क्योंकि वो सडनली और इमोशनल शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि उसको स्लोली उसको समझाना है कि कैंसर कैसा है, कहाँ है, कितना अर्ली स्टेज पे है, नहीं तो एडवांस पे है, और इसका ट्रीटमेंट करने से उसको क्या फायदा होता है। एंड इसमें इमोशनल लेवल पे उनको भी हमको क्या करना होता है कि वी हैव टू गेट देम इनटू बेटर लेवल। सर, जो ये जो टिपिकली जो सेशंस है एमआर लिनक में जाने के लिए, वो क्या है? सो एमआर लिनक में जो रेडिएशन है अभी बहुत एडवांस कर रहे हैं। सो पहले जमाने में जो 5 हफ्ते 6 हफ्ते वैसे ट्रीटमेंट का टाइम रहता था, तो अभी हम उसको कम करके 3 हफ्ते में भी खत्म कर रहे हैं। और कई टाइप ऑफ कैंसर्स में जो रेडियो सर्जरी करते हैं वो 1 दिन से 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। सो वो जो ट्रीटमेंट टाइम को हम बहुत कम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो पहले जमाने में जो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल है, वो एरिया में हायर डोज देके और एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। और रिकवरी कैसे होता है, कितने दिनों तक उसको रहना पड़ता है, एडमिशन कितने दिनों तक रहना पड़ता है, घर आकर ट्रीटमेंट उसका जो लेटर पार्ट है वो कैसे कर सकता है? जो पेशेंट्स आते हैं पहले सोचते हैं कि हमको इसको एडमिशन करना है, कहीं ना कहीं ग्लूकोज लगाना है, इंजेक्शंस लगाना है, रेडिएशन लगाना है। लेकिन पेशेंट्स को इतना समझना है कि ये प्योरली ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, इसके लिए कोई एडमिशन का जरूरत ही नहीं है। ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। जो काम कर रहे हैं वो काम करते बीच में आके भी लेके जा सकते हैं। आधा घंटा डेली उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको, एंड उसके एक इंजेक्शन ग्लूकोज का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जो भी अगर सिम्टम्स है तो उसके लिए तरह तरह का मेडिसिन देते हैं, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट के हिसाब से तो रेडिएशन इटसेल्फ इज द मेडिसिन देयर। एंड वो टाइम पे भी उसको मालूम नहीं पड़ता कि कुछ चल रहा है। लाइक कई लोग वो डरते हैं कि वो कुछ शॉक देगा, करंट देगा, ऐसे बहुत सारे डरते हैं। लेकिन इसमें कुछ शॉक और करंट कुछ नहीं रहता। उसको पता नहीं चलता, जलन नहीं रहता, दर्द नहीं होता, सीधा वो रेडिएशन अंदर जाता है, वो ट्यूमर सेल्स को किल कर देता है। पहले तो होता था नहीं, ये अभी एडवांस कन्वेंशनल में तो रिएक्शंस बहुत आते थे, बहुत सारा रिएक्शन आता है। तो स्किन रिएक्शंस होते थे, डार्क होते थे, पील ऑफ हो जाते थे, अगर इधर दिया तो उधर भी फॉल हो जाते थे। एंड कभी पेट के हिसाब से सर्विक्स में दिया तो उसको पेट में जलन होना, डायरिया हो जाना, ये सब बहुत आते थे रेडिएशन में। बट अभी ये सिस्टम से आप जब कर रहे हैं, हम ये हर एक लेवल पे उसको अवॉइड कर सकते हैं। स्किन को भी हम डोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम 80 से ज्यादा 89 ईयर ओल्ड पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था, उसको 15 दिन ट्रीटमेंट करने का इतना स्किन डार्कनिंग भी नहीं हुआ था। तो रिएक्शंस बहुत बहुत कम है और कभी दिखता भी नहीं है। सो पेशेंट भी इतना खुश होता है कि इमीडिएटली वो अपना काम में चले जा सकते हैं। और हमारे लिए पेशेंट्स आते रहते हैं, कभी यूएस से आते हैं, कनाडा से आते हैं, सेम डे लास्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट से फ्लाइट पकड़ के चले जाते भी हैं। अच्छा, तो इतना सेफ है ट्रीटमेंट। सर, जो कन्वेंशनल थेरापीज है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो कॉस्ट है, जो कन्वेंशनल थेरापी का जो कॉस्ट है, और एमआर लिनक, ये लोग भी सोचते हैं कि ये शायद ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा, ये इसका जो कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है क्या नहीं है? See, if you compare with the conventional अभी जो कन्वेंशनल में भी कॉस्ट इतना बढ़ गया कि हार्डली देयर इज 10 to 20% डिफरेंस, जो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म में जो ट्रीटमेंट का देख रहे हो, तो मान लो कि आप छोटा बहुत सस्ता मिल रहा है बोल के 2D 3D ले लिया है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को हर बार हॉस्पिटल में जाके एडमिशन करके ट्रीटमेंट करने में कितना खर्चा होता है लॉन्ग टर्म में, वो कोई सोचते नहीं है। लेकिन एक ही बार थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ा के अच्छा ट्रीटमेंट लिए तो वो पूरा अवॉइड कर सकते हैं। ओवरऑल कंपेयर करें तो ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव कम ही है। कम है। अच्छा सर, और एक बात बोलिए कि व्हाट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्टर एंड स्टाफ टू ऑपरेट एमआर लिनक? डॉक्टर और नर्स लोगों को भी ये जो ट्रेनिंग की जरूरत है इसमें? हाँ, ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो जो वो मशीन के ऑपरेट करने वाला फिजिसिस्ट जो है, टेक्नोलॉजिस्ट जो है, और डॉक्टर्स उसके ऊपर ट्रीट करते हैं, उसके लिए
अलग से तरीका से ट्रेनिंग भी होता है, जो स्वीडन से आते हैं उनको मशीन वाले जो भी है वो पूरा सॉफ्टवेयर भी पूरा अलग रहता है, सो स्पेशल ट्रेनिंग भी उसको चाहिए रहता है। सर जो कैंसर केयर सेंटर का जो वर्क फ्लो है, तो MR-Linac यूज करने से ये वर्क फ्लो के ऊपर इसका असर कितना पड़ा है? मान ले बर्डन के बारे में सोच, बर्डन पे MR-Linac के ऊपर बहुत डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हर पेशेंट को डेली ट्रीटमेंट में चेंजेस करना पड़ता है। सो उसके ऊपर डेली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी बैठना पड़ता है, और टेक्नोलॉजिस्ट उसको ऊपर बैठ के हमेशा पेशेंट को देख के ऑन बोर्ड हर ट्रीटमेंट में उसका हाथ लगाना पड़ता है। सो जैसे रेगुलर कन्वेंशनल रेडिएशन में पहले दिन का जो ट्रीटमेंट प्लान करके छोड़ देते हैं, वो जब भी उसको साइड इफेक्ट्स है तो डॉक्टर बात करते हैं, नहीं तो मशीन में ऑटोमेटिकल ट्रीटमेंट चलता रहता है। बट यहाँ प्रिसाइजली उसको करने के लिए तो हर जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको डेली उसके ऊपर करना है, उसका काम जो है वो हमेशा करना पड़ता है, जो इसलिए बिट एफर्टिव बट डेडिकेशन से करना पड़ेगा, इफेक्ट रिजल्ट भी उतना होता है। अच्छा, या हर दिन कितने पेशेंट के ऊपर ये MR-Linac हो सकता है? डेली हम ट्रीट कर सकते हैं अराउंड 20 to 25 पेशेंट्स तक ट्रीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सर जो कॉम्प्लिकेशंस है, इधर का जो पेशेंट है, बहुत सारा पेशेंट है कि जो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ चुका है, उसके ऊपर ये MR-Linac होने से पहले से ज्यादा कितना ज्यादा इफेक्टिव है? ये जो नया जो प्रोसीजर है ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है कन्वेंशनल के लिए, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस पर? कॉम्प्लिकेटेड केस में पहले ऐसा माइंडसेट होता है कि कंजर्वेटिव से रेडिएशन देना भी कोई लोग इनकार करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सेफ डोज देंगे ताकि उसका सिम्टम्स रिलीफ होंगे, बट अभी MR-Linac की वजह से उन लोगों को भी अच्छा डोज दे सकते हैं, क्योर के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम है, जो कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो थोड़ा ज्यादा ही एफर्ट कर सकते हैं उसमें। सो बहुत सा असर पड़ रहा है अभी ट्रीटमेंट का, हमारा माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कि कैसे ट्रीट करना है, जो ट्रीटमेंट नहीं करना है क्यों ना ट्राई करें क्योर करने के लिए, ऐसे माइंडसेट में नया नया प्रोटोकॉल्स निकाल रहे हैं अभी। सर अब जो ये सिस्टम है MR-Linac देने के लिए, जो सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका क्या सजेशन है कि कहाँ जाने से ये जो ट्रीटमेंट है ये ज़्यादा बेहतर मिलेगा? हर जगह हो सकता है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इम्प्लांट हो सकता है, लेकिन आपका क्या सजेशन है इसके बारे में? तो अभी MR-Linac इंडिया में तो और क्या देखना चाहिए इसमें ट्रीटमेंट लेने से पहले? सो MR-Linac वो मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और बहुत महंगा है। पहले इंडिया में जो आए हैं, हमारे सेंटर में आया है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। अभी 3 साल से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उसको। सो अभी एक्सपर्टाइज इतना बढ़ गया है कि इतना फाइन ट्यून भी हो गया है हमारे पास, एंड उसको रखना और मेंटेन करना भी बहुत महंगा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां रख सकते हैं और एक्सपर्टाइज है और डॉक्टर्स का उसके ऊपर स्किल, ये सब देखना पड़ेगा। एंड जहां ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट करके सक्सेस हो रहे हैं वहां जाना बेटर होगा। सर और क्या डेवलपमेंट चाहिए इसके ऊपर? आपने तो ट्रीटमेंट किए हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट तो हर तरह का और हर दिन इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपका क्या सजेशन है और क्या करना चाहिए कि इसमें MR-Linac और भी डेवलप, और भी एग्रेसिव, और भी पॉजिटिव, और भी प्रिसाइज हो जाए? MR-Linac अभी जो एक डिफरेंट लेवल को लेके आ गया रेडिएशन को, मान ले कि एक अलग से लेवल पे आ गया है, बट इसको भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अभी ट्रीटमेंट टाइम्स को कम कर सकते हैं, जो और ट्रीटमेंट का जो नंबर ऑफ डेज को भी हम और भी शॉर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मान लो कि अभी प्रोस्टेट कैंसर है, पहले जमाना में 40 डेज 50 डेज का ट्रीटमेंट चलता था, उसके बाद थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज हो गया, थोड़ा एडवांसमेंट से 20 डेज पे लेके आ गया। एंड नाउ रेडियो सर्जरी के वजह से हम 5 डेज में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एंड नाउ MR-Linac की वजह से हम और भी प्लान करके सिंगल डे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो इतना एडवांसमेंट जो भी हमारे हाथ में है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना है और उसका ट्रीटमेंट टाइम कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। सो इसके लिए रिफाइनिंग हमेशा चलता रहता है। অর্থাৎ এখনো রিসার্চ চলছে যাতে MR-Linac সিস্টেমে আরো বেশি আলট্রা ভার্সন সেটা যাতে পরবর্তীকালে ইন্ট্রোডিউস করা যায় আপনাদের ট্রিটমেন্টের জন্য। অর্থাৎ যে হাসপাতাল শুধু আপনাদের ট্রিটমেন্টের কথা ভাবছে না, পরবর্তীকালে তার ডেভেলপমেন্ট, নতুন করে নিউ ইম্প্রোভাইজেশনের কথা ভাবছে, ডেফিনেটলি এটা মাথায় রাখতে হবে। আপনার উন্নতি, আপনার রোগ মুক্তির সমস্ত কারিগরি কিন্তু তাদের হাতেই রয়েছে। আজকে আর হাতে সময় নেই, এই আধ ঘন্টা ধরে আপনাদের সামনে আমরা শুধুমাত্র জানালাম
কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে বসে থেকে সবার কাছে কষ্টের কারণ না হয়ে ট্রিটমেন্টের পথে গেলে সেই ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে যাতে আপনার রিকভারি, আপনার ট্রিটমেন্ট এটা কিন্তু অনেক বেটার হতে পারে। আজকে এখানেই এই অনুষ্ঠান শেষ করব। ডক্টর কারুমাঞ্চিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসবার জন্য, আর আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য। নমস্কার।